Very good afternoon to all. I extend my sincere, hearty, and warm welcome to the 42nd session of this pre-examination training for limited departmental audit and account examination of ICAS. All the participants and the resource persons, I do welcome you to this session. Especially, I am honored to welcome Shree V. Ganesh Kumar, the resource person of the today's important session on Jain, and he is the senior administrative officer and presently working at ICAR National Rice Research Institute, Cuttack. His qualification is Master in Business Administration in Information Systems Management and PG Diploma in Human Resource Management and Diploma in Management. He is the alumni of IIM Calcutta. He has done his graduation in Economics and Special English. He is having the vast year of service in administrative service of ICAR, around 28 years of service he has put in ICAR, and he has served in many institutes, including the big institute like presently NRRI Cuttack, ISR Lucknow, ICAR headquarters, Central Institute for Women in Agriculture, and SIFA Bhubaneswar also. During his association at ICAR, he has brought many administrative reforms in the institute where he has worked in all the ICAR institutes. He thoroughly knows the administrative rules, provisions, guidelines, and his efforts, initiative in the administrative matter has brought sea changes in all the institute wherever he has worked. I am also fortunate to work with him at two institutes, at SIFA Bhubaneswar and NRRI Cuttack also. And there is no doubt that he is thorough in administrative rules, regulations, and guidelines. His area of interest is particularly effective administration through ICT, group dynamics, and learning by doing. And he is very much instrumental in taking up ICAR e-governance initiative, maybe in the institute wherever he is working, and he is also extending support, help, cooperation to other ICAR institute also for the administrative staff. And he has been imparting training in the area of establishment, services, procurement, official language Hindi, so many things. You see, we have today is our 42nd session. Not even a single session has been conducted on the holiday. This is the first session. From that, you can understand the importance of the session and the importance of the resource person also. Because long back, I have forwarded his PPT to you so that you can go through the PPT and afterwards we can have discussion or presentation on the issues. Means considering the importance of the session and the importance of the resource person. The session has been planned on a holiday in spite of his Saturday. So without wasting time, again I welcome to Sri Ganesh Kumar ji for presenting the today's important session on GEM. Now it is over to you. Thank you very much, sir. I think I'm audible to all of you. Yeah.
Yeah, thank you. Thank you. And first of all, I extend my sorry to all the participants on the holiday. You have to like spare your time and join here. It was little inevitable for me due to certain reasons. This session was planned earlier, but due to some health issues, I could not take that session on that particular day. So I requested Das sir. So I wholeheartedly thank Das sir for giving me this opportunity and also accommodating on a holiday and disturbing all the other participants who will be like waiting to have some rest over all the 5 days from this session, and one day they want to take rest, but I disturbed. Sorry for that. But I think this session you will not find it like wastage of time. Let us discuss this. So I'm not taking much time ado. I again welcome all of you and extend my very good evening to all the participants, because the group of participants which I see here is a large group. It's around 94 people have joined. It's a large group, and all these group members are practically the work comes from those hands. The officers sitting there may not be that much thorough in the office with the issues. The dealing assistants who like whom they depend upon, these are the stalwarts, these are the like flag bearers who takes up the work. So here I'm not here as a resource person. You can take it as I'm as one of your colleagues. We can discuss the issues, and here I'll use both Hindi and English because there is a mix participants from south also. There are a few people, north also there are people. So I'll be mixing. So please bear with me. So let us discuss on this. So this is an clearly with an objective. This training program is like designed by Das sir. So this is not a regular training program as we attend for doing our work. For doing our work, we conduct training programs, hands-on training, practical things and all. But this one is specifically meant for क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन, अटेंडिंग एन एग्जामिनेशन. एक एग्जाम, एक क्वालिफाइंग एग्जाम को अटेंड करने के लिए हमको ये किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है. सो हम क्या करेंगे इसमें, ज्यादा प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाएंगे, ये कैसे होगा वो कैसे होगा उसमें नहीं जाएंगे. वी विल जस्ट गो बाय like theory, the way the questions, like probable questions people may put, the paper setters will put in the examination. So उस मोड में से आप देखिएगा, अगर जो अभी स्लाइड शेयर होगा उसमें ईच एंड एवरी स्लाइड को आप एक क्वेश्चन एंड आंसर की तरह इसको सोचिए. सो ये उसका उस पर्टिकुलर स्लाइड में जो डेटा है उसको एक आंसर की तरह सोचिए. लेट अस डिस्कस ऑन दैट. तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. सो उसमें आप भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज हियर जितना 99 पार्टिसिपेंट्स है उसमें मोस्टली 90% पीपल मस्ट बी ऑलरेडी वर्किंग ऑन द जेम. उनके थ्रू ही काम हो रहा होगा. सो विदाउट वेस्टिंग much time, I'll share the PPT, the presentation. One second. So I think the PPT is visible to all. Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you. So today, this is not a training, this is not a class, this is an interaction on GEM in light of the examination point of view. So what is GEM? So you may get a question, say, what is the overview of GEM? What is GEM? So actually the GEM, it is a like government e-procurement marketplace, e-marketplace for all the procurement related activities. Earlier we used to follow physical method. Then we had been asked to shift to CPP, like a public procurement portal. Then after that they have created a platform called government e-marketplace, where like Flipkart and Amazon, we all use to place the orders to avoid the like nitty-gritties of the rules and the procedures and all. So they have inbuilt all these things and making the system robust. So this is exclusively available for government buyers and also PSUs, public sector undertakings. This is a platform created by Union Ministry of Commerce and Industries. So this is the GEM. So next is, what are the salient features of the GEM? So like we have discussed, this can be one of the questions. The GEM, the salient features are GEM
is aimed at enhancing the efficiency. सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी को कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और स्पीड एंड ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट में ये उस ऑब्जेक्ट के साथ और टू एलिमिनेट करप्शन, करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप लोग जानते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है, आप कितने भी प्रॉपर तरीके से आप करिए, बट कुछ लोगों का एक नजर रहता है कुछ हो रहा होगा ऑफिस में, कुछ हो रहा होगा। सो ऐसे चीजों को इस सिस्टम ने ले लिया है। वहां पर जहां पर डाउट की गुंजाइश रहता है वो सारे एलिमेंट को दे हैव टेकन केयर इन द जेम टू अवॉइड टू एलिमिनेट करप्शन द सिस्टम। सो दिस इज द salient वन ऑफ द salient फीचर्स ऑफ द जेम। देन ये किस who administers this? It is administered by Minister of Commerce and Industry. Earlier it used to be DGSND हम जो करते थे, उसी DGSND का ये bigger version है. It's a package and it is completely paperless, cashless and system driven e-marketplace. ये इसमें बिल्कुल आपको एक कागज की भी लेन देन की जरूरत नहीं पड़ती है सिस्टम में, बायर एंड सेलर के बीच में, ऑर्डर प्लेसमेंट में, even payments में भी there is no need of sending any checks or demand drafts. That system is there. So system driven, इसमें सब timeline से automatically system अपने आप आपको गाइड करता रहेगा. It's a very robust system. तो ये जम में only as on date only goods and services को ही लाया गया है, वर्क्स को फिलहाल नहीं लाया गया. So ये याद रखेंगे, जेम is now introduced only for procuring goods and services. So this platform offers online end-to-end solution for procurement of commonly used goods और general used goods जैसे office automation equipment हो गया, stationery हो गया. Nowadays they have included all sorts of items including chemicals, glassware also they have introduced. Now we can procure few of the chemical glassware also. Like services, earlier they used to give only 2 or 3 services on the gem. Now जब में सारे services आप ले पा रहे हैं, hiring of vehicle, manpower services, even agriculture operation services, outsourcing, all sorts of services you can take by all the central government and state government employees, departments. Then because of this gem, आपका considerable amount of time भी save होता है और साथ साथ में आपका resources like physical resources, human resources, financial resources काफी हद तक इसका बचत हो जाता है because of this platform. जिसके जैसे पहले जो प्रोक्योरमेंट मेथड होता था फिजिकल, उसके कंपैरिजन में काफी हद तक ये मदद करता है. सो दीज आर द salient फीचर्स ऑफ जेम. सो उसका और कुछ की फीचर्स क्या है, ये सिस्टम वेंडर और बायर को एक ही प्लेटफॉर्म में, बायर वेंडर एक ही जगह पे अपने रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक सारा काम करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का ऑथेंटिकेशन रोबस्ट मेथड से आधार होगा, पैन होगा, इस टाइप का कुछ ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट, 21 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देयर उनसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सेलर. देन ये हाईली सिक्योर सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बीच में घुस के कोई पेपर को मैनिपुलेट करे, कोई फिगर्स को मैनिपुलेट करे, उसका कोई गुंजाइश नहीं है. सो इसमें मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस है. आपको इमीडिएटली कुछ लेना है, छोटे वैल्यू का है, आपको डायरेक्ट परचेज में ऑप्शन है. बड़े कुछ लेना है, आपका स्पेशलाइज्ड है, बिडिंग ऑप्शन है. सो आपको कुछ खरीद बिडिंग भी लिया है, फिर भी आपको लगता है कि इसका प्राइस और कम होने का चांस है, फिर रिवर्स ऑप्शन है. सो इस टाइप का बहुत सारे फीचर्स है जो हम अभी शेयर किए हुए हैं, वो सारे फीचर्स इसमें है. और इसका कंप्लीट ऑडिट ट्रेल मिल सकता है. जैसे जब से आपने सप्लाई ऑर्डर प्लेस किया, जब तक आप पेमेंट किए हैं, वो कहाँ क्या मेथड में वो गया है, एवरीथिंग कैन बी ऑडिट ट्रेल्ड. देन इसमें पेमेंट ऑप्शंस आर मल्टीपल, पेमेंट का भी टाइमलाइन है, इसलिए क्विक पेमेंट भी होता है. देन आप अपने प्रोडक्ट को इजीली आप चूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, आपके चॉइस के प्रोडक्ट को इसमें ले पाएंगे. तो इसमें प्राइस कंपैरिजन का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है. सो इस टाइप का बहुत सारे फीचर्स इस प्लेटफॉर्म में हैं. और कहीं पर हम अटकते हैं, ये तो एक ट्रेनिंग हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जेम प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे रिसोर्सेस उसके अंदर है. आप जाएंगे, जेम का
ट्रेनिंग, छोटे 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 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, उसको आप देखेंगे वो पूरा जैसे मतलब आपको काम करना है लॉग इन से लेके ईच एंड एवरी स्टेप बहुत सुंदर तरीके से वेरी ब्यूटिफुली दे हैव एक्सप्लेन्ड इन द जेम portal itself. So chote chote videos. So you can use those videos and use the facilities of this gem. So these are the key features. So ये दोनों slide को मिला के कोई question आ सकता है. So these features you can simply write, you will get the marks. Then अब gem कैसे आया? Gem आया है, it is brought under the ambit of the GFR. It is brought under the ambit of the GFR. Under few GFR rules only, this gem was introduced. So, what are the provisions covered under GFR for this gem? So, ये भी एक question आ सकता है. So, what are the rule positions broadly covered? So, rule 147 से शुरू है. रूल जेम को रिलेटेड रूल 147 में क्या है? वहां पर यह दिया गया है, द मिनिस्ट्रीज हैव बीन डेलीगेटेड फुल पावर्स टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम. दिस इज वन एग्जम्पशन यू हैव गॉट. सो कॉमन यूज गुड्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरीली ऑन द जेम as per rule number 149. So first rule which covered gem in the GFR is 149, rule 147. Then it comes to rule 149. So 149 mandates us to procure all the available goods and services on GEM it mandatorily. So in 149, what are the types of yardsticks? So one is up to 25,000 through any available supply on GEM. You can take simply by choosing the product and placing the order. Nothing, no other process is required. Then above 25,000 and up to 5 lakhs, that also you can choose by comparing three unique sellers and place your order simply. So for automobiles, there was a limitation of 30 lakhs earlier for DP, direct purchase. Now by 2022 order, they have exempted that ceiling also. Now for automobiles under direct purchase, don't confuse, there is another clause there, but for direct purchase for automobiles there is no ceiling, but for other purchases under direct purchase about 25 to 5 lakhs only you can compare with 3 sellers and take your product. So this is there. Then above 5 lakhs you can create a bid and take your item. Here for automobiles in bidding process that 30 lakhs is still continuing. So up to 30 lakhs automobiles you can take through bidding process, but if you're going by a DP, you can compare and unlimited, like there is no limit given that. This is as per the present GFR. Recently they have published a modified version, there you can see. So these are the two GFR rules, 147 and 149 are covered under GFR for GEM. Then one more rule which is covered in GFR for GEM, that is rule 161. There it says minimum 3 weeks time to be allowed for submission of bid. That is for GEM. Then procurement by limited tender inquiry in case of urgent need, 162. Then evaluation of technical bids to be conducted by competent authority or technical committee, rule number 163 and 164. These are all applicable. You have for other mode of purchases, you have set of rules. But for GEM, these rules are directly applicable. 163 and 164 says that you need to evaluate technical bids by a competent authority or a technical committee. Then bid security के बारे में 170 में दिया गया है. उसमें लेटेस्ट जो दिया है उसमें ये लिखा है बिड सिक्योरिटी आप 2% से लेकर 5% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू तक बिड सिक्योरिटी रख सकते हैं जेम बिडिंग में. देन परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 3 to 10%, अभी रिसेंट वाले में है 3 to 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 171 रूल के अंदर वो कवर किया गया है. Then one more exemption is also given under GFR for GEM. What is that exemption? Rule 173(1) उसमें बोला गया है prior experience and prior turnover requirements for startups उसकी जरूरत नहीं है.
उस अगर आप चाहें तो उसको वेव करा सकते हैं एज पर डीपीआईआईटी नॉर्म्स. सो दीज आर द लाइक broad GFR provisions governing GEM. So question आ सकता है what are the GFR rules which are governing GEM. तो ये सारे rules है 147, 149, 161, 162, 163, 164, 170, 171 and 173I. So hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में. अगर मैं ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग इट टू फास्ट, प्लीज लाइक टेल मी, आई विल गो अकॉर्डिंगली. नहीं सो ठीक है, स्पीड इज ठीक है ना. ऑलराइट. Okay, okay, thank you, sir. So one more question we can like expect maybe that pardon. Okay. So what are the important OMs? Because these OMs are regularly they are issuing. So you have to be updated on that. So few important OMs we have for while working also we have to see. So what are the important OMs like? One is non-updated payments on the GEM. So if there is a like mandatory like action we have to take, we are procuring, we are even paying, making payments also. But most of the times, what we do is after making the payment, we don't close that process. Most of us. So because of that, all the time that is shown on the GEM portal against our primary user, it is pending payment. Then automatically it creates a yellow flag, red flag, and all. Once certain time limit is passed, the GEM simply suspends our account. We can't make any procurement on GEM. So making updation in the payments portion is very mandatory. So there is a OM for this. And one more clause, it is already taken care. Rule 144.11 XI in the GFR that says that notwithstanding anything contained in this rule, the Department of Expenditure may, by order and rating, impose restrictions, including prior registration, screening on procurement from bidders from a country or countries or a class of countries on grounds of defense of India on or matters directly or indirectly related to thereto, including national security. Non-procurement shall be made in violation of such restrictions. This is it has been amended in the fundamental principles of public buying. So this is just a OM, but this has been already taken care by the GEM itself when you're creating bids or anything. Few orders government of India has issued, MSME, DPIIT, all these things. So these things we have to, when we are doing bidding on CPP, we ourselves have to carefully put these clauses. But when you are doing in the GEM automatically drives you to select those things, making it mandatory to put those clauses in the tender paper so that it is not going as a violation when we are inviting bids. So other OM is regarding definition of services and works. So what are the items which comes under services and which comes under works? Because GEM provides only goods and services procurement. There are no provision for works. So what are those services we can take from GEM? What are the items which comes under works so we can avoid GEM? So that OM is also issued in January 2023 that you can take this. Then after that, one more OM was there. So that says if like you are making any procurement, GEM availability report and past transaction reports, everything you have to verify. The price reasonability, for price reasonability there are business tools already available on the GEM. उसमें है. तो आपको कोई भी चीज खरीदना है, reasonability देखना है, उस buyer का, उस seller का, आप उसका प्रीवियस परचेज प्राइस देख सकते हैं. क्या आपका प्रीवियस परचेज प्राइस से बहुत ज्यादा कोट कर दिया है क्या? तो ये सब रीजनेबिलिटी देखने के लिए वही जेम में ही सिस्टम है. अगर जेम में अगर कोई सेलर का प्रीवियस परचेज हिस्ट्री नहीं है, सो आप अपने खुद के मैकेनिज्म से भी रीजनेबिलिटी ले सकते हैं.
तो दीज इसके अलावा बहुत सारे ओएम्स इश्यू हुए हैं। सो वो सब हमने प्रीवियस लाइक स्लाइड्स में फीचर्स जो बताएं उस हिसाब से जीएफआर में भी कवर्ड, अभी लेटेस्ट जीएफआर में सारे चीज को अपडेट करके दिया गया है। सो आप ये नहीं जीएफआर क्लॉजेस को देखेंगे तो वो सब मिल जाएंगे। देन अब आते हैं, एक और क्वेश्चन आ सकता है, बायर यूजर रोल्स बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सो हमारे बायर ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑन द जेम, वन इज सेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इज बायर ऑर्गेनाइजेशन। वी आर मोस्टली, हम ज्यादातर हम सारे सारे के सारे बायर्स है। अभी धीरे धीरे कुछ इंस्टीट्यूट्स, बड़े इंस्टीट्यूट सोच रहे हैं कि वो सेलर का भी रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि हम आजकल रेवेन्यू जनरेशन के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचना भी शुरू किए हैं। हम सबको रेवेन्यू जनरेशन टारगेट्स दिया गया है, उसमें ये बोला गया है कि 70% रेवेन्यू टारगेट आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी आर जनरेटिंग आवर ओन रेवेन्यू। तो हमारा अपना कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स है, हमारे अपने कुछ लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स है, हमारा कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, कुछ सर्विसेज भी है। वो सारे चीज को हम जेम में लाके एज ए सेलर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम वी विल बी ओनली बायर्स, वी कैन बी सेलर्स आल्सो ऑन जेम, बट नाउ मोस्टली वी आर ऑल वर्किंग एज ए बायर्स। सो बायर का रोल बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है देखेंगे। सबसे पहले जब में आप जाएंगे एज ए बायर ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक प्राइमरी यूजर फर्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। सो प्राइमरी यूजर का स्कोप क्या है? रजिस्टर द ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स देकर रजिस्टर करना। देन यू हैव टू क्रिएट सेकेंडरी यूजर्स। सेकेंडरी यूजर्स कौन होते हैं? जो अदर काम करते हैं, इंडेंट देगा, उसके बाद क्रैक जनरेट करेगा, उसके बाद बिल प्रोसेस करेगा, पेमेंट करेगा। दिस आर ऑल सेकेंडरी यूजर्स। सो सेकेंडरी यूजर्स क्रिएट करने का रोल है। देन मैनेज यूजर्स, आप तो यूजर्स तो क्रिएट कर लिए, देन उस कोई यूजर ट्रांसफर होके चला गया, कोई यूजर रिटायर हो गया, कोई यूजर का आपने मतलब सेक्शन चेंज कर लिया। सो ये जो यूजर का जो मैनेजमेंट है, दैट विल आल्सो बी डन बाय द प्राइमरी यूजर्स रोल। देन मॉनिटरिंग ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, यहां पर आता है जब भी आपका प्राइमरी यूजर लॉगिन करता है सिस्टम में, इवन प्राइमरी यूजर सिस्टम में लॉगिन भी नहीं करे, उनके पास आप जो भी एक्शन लेते हैं, ईच एंड एवरी एक्शन का एक एसएमएस आता है। ऐसे ही सिस्टम में भी आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, उसमें कितने ऑर्डर्स गया है, कितना पेमेंट्स पेंडिंग है, कितने का क्रैक जनरेशन पेंडिंग है, आपका स्टेज के मतलब क्या फ्लैग्स है, और रेड फ्लैग में आ गया क्या, आपके ऊपर कोई इंसिडेंट ज्यादा हो गया क्या। सो ऑल दीज थिंग्स आपका प्राइमरी यूजर के रोल से आप एक्सेस कर पाएंगे। सो दीज आर द स्कोप ऑफ प्राइमरी यूजर्स। देन उसके बाद सेकेंडरी यूजर्स का कौन कौन होते हैं? अभी नया यूज किए, मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं इंडेंटर, पहले नहीं था। अभी इंडेंटर रोल एक क्रिएट कर सकते हैं एज ए यूजर। सो इंडेंटर अपना सेलेक्ट करेगा और उसको कार्ट में रखेगा, तो उसको आपका जो रेस्पेक्टिव बायर जो भी होगा, उसको एज सच वहां से पिक करके आपको ऑर्डर क्रिएट करा सकते हैं। सो इंडेंटर, बायर, देन कंसाइनी। बायर मीन्स ईच एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक डेफिनेट एक प्रोक्योरमेंट आइटम के लिए कुछ बायर्स को रखते हैं, बाइंग एंटिटीज को। आपके यहाँ पर कहीं कोई डीलिंग असिस्टेंट भी हो सकता है, कोई डब्ल्यूओ भी हो सकता है, कोई एओ भी हो सकता है, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। सो वो बायर क्या कर सकता है, उनके आईडी से ही वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो बायर एंड कंसाइनी कैन बी सेम एंटिटी। दोनों कंसाइनी के बारे में बताता हूँ क्या होता है, बट एक ही पर्सन को बायर कंसाइनी भी बोल सकते हैं। और बायर परचेस कर सकता है एंड बिल्स को ड्राफ्ट कर सकता है। कंसाइनी क्या होता है? आप अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपका कोई केवीके है, वहां आपको सप्लाई कराना है। सो वो केवीके का यूजर को आप कंसाइनी बोलेंगे, उस लोकेशन को कंसाइनी एड्रेस देंगे। सो आप यहाँ ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपका केवीके में सप्लाई होगा। सो जहां सप्लाई होगा वहां पर जो कंसाइनी जिसको आपने डिफाइन किया, वो कंसाइनी उस आइटम को रिसीव करेगा एंड सिस्टम में उसको क्रैक जनरेट करेगा
या पीआरएसी प्रोविजनल रिसीट जनरेट करेगा, तो कि सामान मिल गया। सो ये होते हैं कंसाइनी। सो कंसाइनी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, सेम बायर भी हो सकता है। सो बायर एंड कंसाइनी कैन बी द सेम पर्सन, नो इश्यू। देन होता है एक टेक्निकल इवैल्यूएटर। जब हम बिडिंग प्रोसेस में जाते हैं, जब मैं व्हेन वी डू बिडिंग प्रोसेस, कस्टम बिड और अदर बिड्स और रिवर्स ऑक्शन, व्हाटएवर इट इज, there is a provision of evaluation, technical evaluation. So technical evaluator करके एक user role create कर सकते हैं. So that technical evaluators can't indent, they can't be consignee, they can't be buyer. They can simply make the evaluation as per the set technical parameters and give their recommendation. So ये एक नया user create कर सकते हैं. Then आता है DDO. DDO जो बिल आपका स्टोर सेक्शन और whoever is the buyer when after the generating the crack and all पास करते हैं, then DDO उसको उसको पीएफएमएस में बिल क्रिएट करेगा, नहीं तो ऑफलाइन मोड में बिल क्रिएट करेगा। सो डीडीओ रोल दे सकते हैं। देन it goes to PAO. PAO means pay and accounts officer. For our in our ICR system, it is FAO or AFAO or senior FAO, chief FAO, whatever it is, whoever is handling the payment, passing of the bills. So at that stage, you have to carefully see once that payment is made by that PO, it should be immediately in their account. It should be updated by this mode. It is paid. Otherwise, it will always show that it is pending, payment is pending. Then there is a provision of penalty in the GEM, like after, like it is already 1.5 years over. So there is a provision of penalty for late payment. Even if you are paying in time, if you are updating in a delayed, like later date, it treats that as a delayed payment, and automatically system calculates the penal interest and it puts on the buyer organization for the payment. So whatever you do, because I have personally faced this issue, whatever you do, GEM support desk is also unable to help in this regard as of now. Once system is saying that you are defaulter for payment of penal interest, it is there, even if you have paid well in advance. So please make it sure that you update whenever you are making payments. Next. So in GEM, what are the basic modes of procurements available as of now? As I told you, हम पहले बात कर चुके हैं। जब में हम दो टाइप के प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, गुड्स का प्रोक्योरमेंट, सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट। गुड्स मींस ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइटम्स, आप जानते हैं। सर्विसेज में डेफिनेशंस लास्ट स्लाइड में हम देखे हैं। तो सर्विसेज, कुछ सर्विसेज जो भी कैटेगरी क्रिएटेड है, जब में अवेलेबल है, सारे सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। वर्क्स का इसमें नहीं है। सो दोनों का प्रोक्योरमेंट का सिस्टम सेम है। दो सेपरेट कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरीज है, बट दोनों का सिस्टम सेम है। तो वो क्या है? डायरेक्ट परचेस मेथड। डायरेक्ट परचेस मेथड दो टाइप का होता है। क्या है डायरेक्ट परचेस का मतलब? आपको ज्यादा बिडिंग प्रोसेस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली प्रोडक्ट चूज करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। सो डायरेक्ट परचेस में अप टू 25,000, मतलब 25,000 के नीचे तक, 25,000 और उसके नीचे तक कोई भी प्रोडक्ट आपको जब में अवेलेबल है और आपको वो चीज लेने का अप्रूवल मिला है, लेना चाहते हैं, सिंपली आप लोग लॉग इन करेंगे, उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। देयर इज नो अदर फॉर्मेलिटी इन दैट। सिमिलरली आपको 25,000 से लेकर 5 लाख तक का कोई भी प्रोडक्ट जब में अवेलेबल है और आपका उसका अप्रूवल मिला है, सो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पैरामीटर्स को लेके, गोल्डन पैरामीटर्स, व्हाटएवर पैरामीटर्स लेके आप सिलेक्शन करके कंपैरिजन करना पड़ेगा। 3 सेलर का, 3 यूनिक सेलर का कंपैरिजन में आपका जो L1 निकलेगा, आपके इसमें चॉइस आपका है। किन तीनों को चॉइस करेंगे आपके ऊपर है। उन तीनों को आप चॉइस किए हैं, उसमें जो L1 आएगा उसको सीधा डायरेक्ट परचेस ऑर्डर दे सकते हैं। सो ये है डायरेक्ट परचेस बाय 2 मेथड्स। वन इज अप टू 25,000 सीधा कर सकते हैं, 25 अबव एंड अप टू 5 लाख आप 3 कंपैरिजन करके कर सकते हैं। और क्या है? बिडिंग। जो चीज आप डायरेक्ट परचेस में कर नहीं पा रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा हो, उसको हाँ आप बिडिंग करेंगे, बिड करेंगे, प्रोक्यूरमेंट वाया बिड। एंड उसमें क्या होगा? आप अपने
कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उस प्रोडक्ट को चूज करेंगे, उसके जो स्पेसिफिकेशंस को आप डिराइव करेंगे एड टू कार्ट करके, उसके बेसिस में आप अपना बिड क्रिएट कर सकते हो। तो जनरल बिडिंग मतलब जिसका जब में कैटेगरी अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिस्टिंग है जो 5 लाख से ज्यादा है, सो फॉर ऑल दोस टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट्स आप बिडिंग कर सकते हैं। सो बिडिंग के लिए मिनिमम टाइम जो भी स्टिपुलेटेड टाइम देना पड़ेगा, उस टाइम के बाद बिड्स विल कम। ओके, हियर वंस यू गेट द जनरल बिडिंग का बिड्स आ गया है, यहाँ पर आपका कमिटी ने देखा, बोला कि नहीं इसमें ये रेट और कम होने का चांस है, सो आपका इसमें ये भी स्कोप है उसको रिवर्स ऑक्शन करने का। दैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड वन L1 बिड, देन यू कैन ट्रांसफर इट एज ए रिवर्स ऑक्शन। सो सबको रिवील हो जाएगा कि इन्होंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ये स्पेसिफिकेशन का ये रेट आया है, अब ये इस रेट से कम कोई भी कोट करेगा, सो उसको ऑर्डर मिलेगा। इट इज लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम। सो रिवर्स ऑक्शन ऑप्शन आल्सो देयर, बट इसको आप बिड क्रिएशन स्टेज में थोड़ा सा केयरफुली उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिड टू आरए क्रिएशन यस और नो, उसमें एक ऑप्शन रहता है, आप वो करेंगे तभी जा पाएंगे। अगर वो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बिड स्टेज में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दिस इज बिड एंड बिड टू आरए। देन इंटेंट ऑफ बाइंग, दैट इज हम लोग प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देके हम लोग प्रोप्राइटरी आइटम्स खरीदते हैं। सो ये इसमें भी जेम में भी वो चीज है, पीएसी बाइंग। पीएसी बाइंग में क्या है, विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, वॉट एवर द डेलीगेशन ऑफ पावर इज देयर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से आप कोई भी स्पेसिफिक आइटम को लेना चाहते हैं, कोई ब्रांडेड एचपी का ही कंप्यूटर आपको लेना है, तो फिर आप स्पेशल अप्रूवल लेके आप एचपी कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन देके पीएससी बिडिंग करा सकते हैं। सो वो भी सेम ऐसे ही प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट इज आल्सो पॉसिबल। देन कस्टम बिडिंग, कस्टम बिडिंग एंड बीओक्यू बिडिंग दो चीज होता है। इसमें भी ऐसा ही है, मतलब जहां कैटेगरीज है उसका स्पेसिफिकेशन एज सच आपको मैचिंग स्पेसिफिकेशंस नहीं मिल रहा है, सो आप अपना स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करके कस्टम बिडिंग करा सकते हैं। देन बीओक्यू बिडिंग भी सिमिलर, जहां पर कैटेगरीज नहीं होता है उसके लिए उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट के लिए आप बीओक्यू बिडिंग करा सकते हैं। इसके अलावा एक और है मेथड, दैट इज नॉट ए प्रोक्योरमेंट मेथड, दैट इज एन ऑक्शन मेथड, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑक्शन। अब हमारा चल रहा है अक्टूबर 2 से लेके अभी डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल वगैरह एक वीक मंथ चल रहा है। सो उसमें काफी सारे हमको चीजों को ऑक्शन करके डिस्पोज करने का होता है। सो अभी जब में फॉरवर्ड ऑक्शन का भी एक प्रोविजन है। सो यू पुट ऑल योर थिंग्स ऑन द जम पोर्टल, उसमें आप अपना ऑक्शन का बिड्स मतलब इनवाइट कर सकते हैं। जो H1 बिडर को आप आराम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसमें पहले क्या होता था, आप नोटिस निकालेंगे, कुछ लोग आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑन द स्पॉट पेमेंट करेंगे। सो काफी वहां पर मैनुअल इंटरफेरेंस होता था, करप्शन का स्कोप होता था, मारपीट का होता था, बहुत सारा। अभी फॉरवर्ड ऑक्शन ऑनलाइन होने के कारण इसमें आपको कहीं भी एक जगह अगर चाहे तो इफ दे वांट टू इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स आइटम्स व्हिच आर यू आर गोइंग टू ऑक्शन, वो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आप फिक्स कर दिया, वो आके चला गया देख के। बट बाकी कोई भी प्रोसेस में कहीं पर भी देयर इज नो ह्यूमन like interface, simply system will do. So this forward auction is also one sort of method available in the GEM. So procurement of goods, procurement services and forward auction are the three modes of procurements available. So ये question आ सकता है। Then अब अभी हमने डिस्कशन किया है D1 डीपी विथ L1 क्या है। सो वही चीज है, डायरेक्ट परचेस अभी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो डायरेक्ट परचेस में अप टू 25,000 सिंपली आप चूज करेंगे एंड 25 एंड 5 लाख तक कंपैरिजन करके आप अपना L1 प्राइस वाले को चूज करके ले सकते हैं। देन ई-बिड एंड रिवर्स ऑक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड। देन PSE bidding, ये भी we have discussed. Forward auction also we have discussed. Forward auction facilitates e-auction management for central and state government, PSUs, autonomous and local bodies. So forward auction program works to maximize commercial advantages and increase the opportunity of saving across categories.
तो जो भी आपका इमूवेबल एसेट्स है उसको जब पब्लिक ऑक्शन करेंगे तो ये मेथड में आपको काफी इजीली आप इसको कर सकते हैं। देन नाउ जंप 3.0 फिलहाल चल रहा था, अभी नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस, जस्ट इट इज इंट्रोड्यूस्ड जंप 4.0, इट इज अ वर्जन, इट इज अ वर्जन। सो ये भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जंप 4.0। सो जंप 4.0 में क्या नया चीज उन्होंने रखा है? So Jump 4.0, it's the latest version of the e-marketplace. So it adds on to the feature existing जो भी features है, उस थर्ड वर्जन में जो भी फीचर्स हम लोग यूज कर रहे थे उसमें कुछ नए फीचर्स उन्होंने और ऐड किए हैं। So these are the salient features on Jump 4.0, that is sellers will get timely payment, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट रख दिया है, पीएफएमएस से जोड़ दिया है। अभी आपका हम लोग आईसीआर में भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अदरवाइज पीएफएमएस से जंप पूल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आया है। जंप पूल अकाउंट का मतलब है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी टाइम दैट मनी गोज टू योर जंप पूल अकाउंट इन द नेम ऑफ द सेलर। आपका टाइमलाइन है क्रैक जनरेशन का 10 डेज, उसके बाद प्रोसेसिंग का सम टाइमलाइन, उस टाइमलाइन के बाद सारे आपने कहीं पर भी ऑब्जेक्शन नहीं डाला, रिजेक्ट नहीं किया आइटम को, सो आइटम आपने रिसीव कर लिया। सो आपके इंटरनल कुछ भी आप करिए, इंस्टॉल नॉन इंस्टॉल व्हाटएवर, अगर सिस्टम में क्लियर कट है एक सर्टेन डेट के बाद आपके जंप पूल अकाउंट से सेलर को पैसा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दिस इज अ सिस्टम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। सो इसी वजह से सेलर विल गेट टाइमली पेमेंट, ये वाला एक रखा है। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड एडवांस सर्च इंजन, पहले आप एक कीवर्ड, उसका जो मैचिंग कीवर्ड, कोई प्रोडक्ट है मैचिंग कीवर्ड नहीं देने से जीआर में प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल करके आता है। नाउ दे हैव used AI and machine learning into the system. Now natural language processing based search engine डाल दिया। आपको मान लीजिए कंप्यूटर लेना है, डेस्कटॉप लिख दिया, सो वो समझ जाएगा कि आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना है या डेस्कटॉप टेबल लेना है। सो अपना जो भी डेस्कटॉप रिलेटेड जितना है वो दे देगा। सो वो धीरे धीरे मतलब जैसे यूजर्स जैसे सर्च कर रहे हैं उसको मशीन लर्न कर रहा है कीवर्ड को। सो वो आप सर्च करेंगे, कोई एक प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, सो वो मशीन लर्न करके बोल रहा है कि ये आदमी वहां पर पेपर सर्च किया लेकिन पेपर श्रेडर खरीदा। दैट मीन्स पेपर श्रेडर के लिए भी कोई सर्च कर रहा होगा पेपर के नाम से, तो मेरे को देना है। सो सिस्टम इसको यूज कर रहा है। दिस इज अ फीचर दे हैव यूज्ड। Then demand segregation, wherein buyers can collect several orders of the same product for different consignees across many organizations within one ministry. Like अभी देखिए, अभी हम लोग का 110 से ज्यादा आईसीआर यूनिट्स है, हम लोग सब अपना अपना खुद का परचेस करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, आईसीआर ब्रॉड लेवल में सोचेगा कि भाई ये केमिकल ग्लासवेयर या स्टेशनरी जो कॉमन यूज थिंग्स है हम सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करेंगे और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करके हम अपने सेंट्रल लेवल में हम देंगे। ईएफसी तो हम हमारे पास है, ईएफसी के और बजट भी हमारे पास है, हम क्यों इंस्टीट्यूट को बोलेंगे हम ही खरीदेंगे करके आईसीआर हेडक्वार्टर सोचेगा बाई चांस। तो ये डिमांड एग्रीगेशन वाला मेथड से आईसीआर हेडक्वार्टर सारे इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट को पुल अप करा के एक ही ऑर्डर में सिंपली वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस वो एक ही मिनिस्ट्री मतलब ऑर्डर प्लेस कर सकता है। This provision is also introduced in 4.0. Then user interface has been revamped and made more user friendly. धीरे धीरे मतलब जितना यूजर फ्रेंडली करेंगे उतना लोग को पसंद आएगा। सो उस एरिया में भी दे आर वर्किंग। देन स्टैगर्ड और फ्लेक्सिबल डिलीवरी इज ऑल्सो अलाउड। आपका एक प्रोडक्ट खरीदना है, आपको पता है ये प्रोडक्ट आप पूरे साल में इतना मेरे को जरूरत है, मान लीजिए फर्टिलाइजर खरीदना है, लेकिन मेरा 6 महीने का 8 महीने का फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है, बट मेरे को ये फर्टिलाइजर 15-15 दिन में एक महीने में ये अलग अलग कंसर्नी के हिसाब से मेरे को या अलग अलग टाइम लाइन के हिसाब से मेरे को चाहिए। सो इसमें स्टैगर्ड और फ्लेक्सिबल डिलीवरी का भी प्रोविजन नया इसमें रखा है। देन bidding module has been redesigned and now consignee wise and item wise bidding is also permitted. So आपका पर्टिकुलर पहले क्या होता है हम कंसेनी सेलेक्ट कर ले, एक कंसेनी का एक बिड कर दिया। अभी ऐसा नहीं, आप पूरा कंसेनी वाइज आइटम वाइज भी बिडिंग करके
आप एक टेंडर एक बिडिंग निकाल सकते हैं। देन एडवांस एनालिटिकल टूल, जैसे वी हैव डिस्कस मशीन लर्निंग एआई को इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में। सो आपका एनालिटिक्स, जैसे ये पर्टिकुलर आइटम कितने लोगों ने खरीदा, इसका क्या रेटिंग है, इसका क्या प्राइस पास्ट परचेज हिस्ट्री है, वो सारे चीज सिस्टम लर्न करता है, आपको एनालिटिक्स में उसको यूज करने के लिए हेल्प करता है। Then the grievance redressal mechanism has been improved. इस पर्टिकुलर वर्शन में ग्रीवेंसेस ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, दोनों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म को इंप्रूव किया गया। हम तो इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, देन इंसिडेंट क्रिएट करने के बाद वो फिर अपने चैनल में पहले चलता था। नाउ दे हैव मेड इट लिटिल मोर इम्प्रोवाइज्ड वर्जन। देन कैटलॉगिंग हैज बीन मेड सिंपलर फॉर सेलर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइस वेरिएशन। ये सेलर के लिए क्या किया है, पहले एक कैटलॉग क्रिएट करना है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कैटेगरी क्रिएट किया, उस कैटेगरी का जितना भी उसका प्रोडक्ट्स है, वो एक एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स, स्पेसिफिकेशंस, उसका फीचर्स देके एक एक चीज को सेलर को ऐड करने में बहुत दिक्कत होता था। उसको वेरिफिकेशंस, रीवेरिफिकेशंस बहुत सारा होता था। सो उस पर्टिकुलर मेथड को उन्होंने इसमें सिंप्लीफाई किया है। देन ईज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस विद इंटीग्रेशन विद मेनी बैंक्स। अभी बैंक के साथ इंटीग्रेट करके वो पेमेंट सिस्टम इजी कर दिया है। देन सेलर रेटिंग इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड, making it easier for buyers to make the decision and also incentivizing sellers to upgrade. तो सेलर रेटिंग तो आपको पता है, आप जब भी कोई आइटम खरीदना चाहते हैं, तो आपका सेलेक्ट करने से पहले वहां पर सेलर रेटिंग होता है 4.1, 5.5, 2 पॉइंट ऐसा समथिंग। सो आप अपना उस रेटिंग देख के भी आप देख सकते हैं कि ये सेलर रिलायबल है कि नहीं है, उसको ऑर्डर देना है कि नहीं देना है। सो दैट सिस्टम ऑल्सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, एंड जिसका अच्छे रेटिंग है उसको वो इंसेंटिवाइज करने का और का भी प्रोविजन उन्होंने रखा है फॉर सेलर्स। देन मेनी न्यू सर्विसेज एंड कैटेगरीज आर इंक्लूडेड। ये डे टू डे बेसिस में इट इज एन लाइक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। आप आज एक देखेंगे कोई कैटेगरी आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद देखिए वो कैटेगरी मिल जाएगा। सो आप कभी ये मत सोचिए अरे 2 दिन पहले मैंने देखा था ये प्रोडक्ट नहीं है, जीआर निकाल दूंगा, मैं 155 में खरीद लूंगा, नहीं होगा। आपको ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू सर्च विथ प्रॉपर कीवर्ड ऑन द जेम एंड उसका जीआर निकालना है और जीआर लगा के अल्टरनेट मेथड में जाना है। सो ये daily regular basis they are adding the new services and categories. Now sellers and buyers can interact with each other, thus offering scope for improvement and better understanding of the market. So उसमें भी आपको interaction का एक प्लेटफॉर्म रखा गया है। So this version has dedicated pages for CPUs. सेंट्रल मतलब कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए डेडिकेटेड पेजेस ही क्रिएट कर लिया। जैसे पोर्ट्स है, कुछ पोर्ट्स है, कुछ स्टील प्लांट्स है, उन लोगों का स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है, राउंड द ईयर होता है। सो उनको जनरल जम पोर्टल के अलावा उनके लिए स्पेसिफिक अगर उनके डिमांड आएगा तो एक पोर्टल में उनके लिए एक डेडिकेटेड पेज भी क्रिएट करने का स्कोप रखा है। सो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स which are added in the GEM 4.0 version. Maybe this is also one of the questions. Then GEM procurement में क्या है नया इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स इन जेम प्रोक्योरमेंट। से अभी हमने जैसे बात किया है, न्यू यूजर रोल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द जेम। सो इंडेंटर रोल फॉर कार्ट क्रिएशन, इंडेंट पहले नहीं होता था, पहले बायर को ही सारा सर्च करना है, फिर वो ऐड टू कार्ट करना है, वो ऑर्डर क्रिएशन करना है, सब होता था। अभी क्या है ना, एक इंडेंटर रोल दिया है सो दैट ए यूजर a new user is created under the HOD on GEM for searching and adding the product to the cart on the GEM portal. The cart can then further be transferred online to the selected buyer for further processing. So आपने कार्ट में ऐड कर दिया, so उस कार्ट में आप एक इंडेंटर है, आपको कुछ आइटम खरीदना है, आप इंडेंट के साथ खुद ही सर्च कर लिया है जब में भाई ये अवेलेबल है, मेरे को ये प्रोडक्ट पसंद है, तो फिर उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के बाद अगर वो इंडेंट अप्रूव होता है, उस ऐड टू कार्ट आइटम को एज सच आप ट्रांसफर कर देंगे बायर अकाउंट को सीधा, फिर बायर को सर्च करने की जरूरत नहीं। सो दैट सिस्टम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। देन टेक्निकल इवैल्यूएटर रोल फॉर बिड इवैल्यूएशन, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्निकल इवैल्यूएटर रोल आल्सो
जो टेंडर कमिटी में जितना परचेस कमिटी मेंबर्स है उन सबको आप ये रोल्स असाइन कर सकते हैं जो बायर नहीं है. Then this being an optional choice, buyer can either choose self evaluation or tender committee, whatever. Self evaluation करेगा तो buyer अपना करेगा, अगर टेंडर कमिटी करेगा तो टेंडर कमिटी वालों को टेंडर इवेल्युएटर रोल देने का भी नया एक इनिशिएटिव जब में लिया गया है. अब हमने देखा बिडिंग प्रोसेस, डायरेक्ट परचेस प्रोसेस, कस्टम बिड प्रोसेस, सब. इसके अलावा आपका और सिंपलीफाई करने के लिए कुछ कैटेगरीज ऑफ आइटम्स के लिए जो रूटीन नेचर ऑफ आइटम्स, उसमें ज्यादा स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है. फॉर दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एक मेथड है सिंगल पैकेट बिडिंग. सो व्हाट इज द सिंगल पैकेट बिडिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द सिंगल पैकेट बिडिंग ऑन द जेम. सो इसका ओवरव्यू देखिए क्या लिखा है जेम पोर्टल में, उसको एज सच मैंने कॉपी पेस्ट किया है इधर. At present on JUMP, bids are being evaluated by the buyer through a two-stage process, double packet system, whereby first bid opening officials assign the bid to a technical member, technical committee for technical evaluation. A technical member evaluate करता है, उसके बाद decision लेने के बाद फिर वो financial part में जाता है. JUMP has now introduced single packet system for buyers in which all bidders who submits bid are evaluated based on the ranking at the time of bid opening. In this case, all vendors' names will appear in the comparative statement, but their bids may be technically suitable or not. The envelopes will be opened at the date and time advised in the bid document. So उसमें आपका एक रैंकिंग के बेसिस में उनका जो भी सेट किया आप सेट करेंगे. टेक्निकली 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतने सर्विस, व्हाटएवर पैरामीटर्स आपने किया है, उसके साथ साथ वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंकिंग करेगा और प्राइस भी उसके साथ ही रहेगा. दैट इज अ सिंगल पैकेट सिस्टम. ये है उसमें एक मेथड है. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस फॉर जनरल आइटम्स. उसमें क्या है, ड्यूरिंग द बिड क्रिएशन प्रोसेस द बायर कैन चूज बिटवीन द सिंगल पैकेट और डबल पैकेट. आप बिड क्रिएशन स्टेज में कर सकते हैं. बिड टू, इसमें सिंगल पैकेट में बिड टू आरए का स्कोप नहीं होता है. अदर बिडिंग में आप बिड टू आरए का स्कोप है, लेकिन इसमें रिवर्स ऑक्शन का स्कोप नहीं है. द शेड्यूल वाइज इवैल्यूएशन भी पॉसिबल नहीं है. शेड्यूल वाइज इवैल्यूएशन मींस आपको कोई आइटम खरीदना है, 10 कंप्यूटर्स खरीदना है, उसमें मान लीजिए कि आपको कुछ एक्सेसरीज भी खरीदना है, सब मिला के कुछ शेड्यूल्स बनाएंगे. सो नॉर्मल बिडिंग में शेड्यूल वाइज इवैल्यूएट करके भी आप शेड्यूल में जो एल1 आता है उसको दे सकते हैं. बट सिंगल पैकेट बिडिंग में शेड्यूल वाइज इवैल्यूएशन इज नॉट अवेलेबल. देयरफॉर टोटल वैल्यू विल बी यूज्ड बाय डिफॉल्ट. द रिमेनिंग स्टेप्स इन द बिड क्रिएशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द सेम वे. बाकी जैसे बिडिंग प्रोसेस होता है बाकी उसके आगे सारा सेम है. लेकिन ये अभी जब में कुछ लिमिटेड कैटेगरीज, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द फ्यू लिमिटेड कैटेगरीज ऑन द जम. वो धीरे धीरे उसमें वो लोग एनहांस कर रहे हैं, उस लिस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज वन मेथड ऑफ बिडिंग सिस्टम, सिंगल पैकेट सिस्टम. इट इज आल्सो अवेलेबल. देन हम जब बिडिंग करते हैं और एक मुसीबत आता है, दैट इज कॉल्ड अनवर्केबल L1. क्या होगा, आप कोई बिडिंग किए हैं, कोई रेट इतना लो आ जाएगा, आपको खुद ही पता है दैट रेट इज नॉट रीजनेबल, इट इज अनवर्केबल L1. सो अनवर्केबल L1 को भी डील करने का भी प्रोविजन उसमें है. सो करंटली ऑन जम देयर इज नो प्रोविजन टू डील विद द केसेस ऑफ अनवर्केबल L1. हेंस सच रिक्वेस्ट आर डेल्ट बैक एंड. This feature of unworkable L1 takes care of this requirement. क्या करेगा, an abnormally low bid is one in which the bid price in combination with other elements of the bid appears so low that it raises material concerns. आपको लगेगा कि इतना कम पैसे में खरीदूंगा तो इतना चीप क्वालिटी आएगा, मेरे को तो फॉरफिट, मेरा पर्पस ही फॉरफिट हो जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में procurement entity may seek a written clarification from the bidder including complete analysis of such bids. हम वर्क्स में यूजुअली ये काम करते हैं. जब वर्क्स का बिडिंग आप करते हैं, आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है, कभी कभी 20-30% लो में कोई कोट कर देता है, देन आप रेट एनालिसिस मांगते हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ रेट कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बिड्स आप मांग सकते हैं. इफ द प्रोक्यूरिंग एंटिटी डिटरमिन्स दैट द बिडर हैज सब्सटेंशियली फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कैपेबिलिटी टू डिलीवर द कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑफर्ड प्राइस, द प्रोक्यूरिंग एंटिटी में रिजेक्ट द बिड. इसमें अनवर्केबल बिड को ये करने के लिए आप रेट एनालिसिस लेने के बाद आपको लगता है कि इट इज नॉट जस्टिफाइबल, यू कैन रिजेक्ट द बिड. हाउएवर इट वुड, आप इसको प्री डिटरमाइंड एक नॉर्मेटिव परसेंटेज लेके कर नहीं सकते.
आप ये बोलेंगे कि मेरे को मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट से 20% से नीचे आएगा तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, ऐसा नहीं। उसका रेट एनालिसिस आएगा, उस रेट एनालिसिस को यू हैव टू वर्कआउट, देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन। ये होता है इसका अनवर्कबल बिड को हैंडल करने का तरीका। द बिड क्रिएशन फ्लो विल रिमेन अनचेंज, देयर विल बी नो चेंजेस टू द बिड क्रिएशन फ्लो। तो नॉर्मल जो बिडिंग प्रोसेस है उसी हिसाब से ही ये होता है। देन और एक टाइप ऑफ बिडिंग है लोड बेस्ड बिडिंग। सो लोड बेस्ड बिडिंग के बारे में बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा आएगा, दे विल आस्क राइट ए ब्रीफ अबाउट ए लोड बेस्ड बिडिंग। सो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं, अब बिड्स आर करेंटली बीइंग इवैल्यूएटेड ऑन जम बेस्ड ऑन द प्राइस। मोस्टली क्या करते हैं हम L1 को लेके चलते हैं, लेकिन कुछ चीजों में, कुछ टेक्नो कमर्शियल आइटम्स में आपको टेक्निकली क्वालिफाई करना भी उतना जरूरी है, L1 के बाद में आएगा। सो वहां पर कुछ आप उस बिड में, उस बिड क्रिएशन स्टेज में कुछ लोडिंग करेंगे, लोडेड उस बिड को लोडेड करेंगे विथ फ्यू टेक्नो कमर्शियल टर्म्स से। तो कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड कैटेगरीज में अवेलेबल है। आप बिड क्रिएट करने के टाइम में वो लोड बेस्ड बिडिंग क्रिएट करने के टाइम में उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके बिड डॉक्यूमेंट में क्लियरली डिफाइन करके देना पड़ेगा। देन वहां नाउ यू कैन डिक्लेयर द टेक्नो कमर्शियल लोडिंग क्राइटेरिया फॉर बिड एवेल्युएशन एट द टाइम ऑफ बिड क्रिएशन। बिड क्रिएशन टाइम में लिखना है, these details shall be printed in the bid documents. This feature is designed to remain as an optional choice applicable for procurement through bids alone and is not available for direct purchase or L1. Only ये जो load based bidding है, only आप बिडिंग प्रोसेस में ही कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज में नहीं कर सकते हैं। इफ लोड बेस्ड बिडिंग इज सेलेक्टेड, बिड टू आरए का प्रोविजन नहीं मिलेगा, आईटीसी बेस्ड इवैल्यूएशन भी नहीं मिलेगा। तो buyer is required to mention the loading criteria and upload the file depicting the buyer's calculation when loading the techno-commercial parameters. तो आप कुछ मार्किंग दे सकते हैं, एक्सपीरियंस होने से ये होगा, इसका सर्विस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हो, वट एवर क्राइटेरिया यू वांट टू गिव फॉर कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, उसमें आपको टेक्निकल पैरामीटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज along with the price. सो उस टाइम में आप लोड बेस्ड बिडिंग का भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, bidders have to upload documents like financial and technical documents pertaining to the criteria for loading in financial evaluation at the time of uploading documents during seller participation. Financial documents shall be visible to the buyer during financial evaluation only. वो तो आपको टेक्निकल के बाद ही फाइनेंशियल का पता चलेगा। The buyer can enter the evaluated price post loading for each bidder and notify the participated bidders. There is a provision for bidder representation and subsequent revision of the evaluated price to account for loading factors. तो मान लीजिए कोई भी एक प्रोक्योरमेंट में आप लोडिंग फैक्टर डाल रहे हैं, मेरे को इतने दिन का एडिशनल सर्विस सपोर्ट चाहिए, या आपका ये पर्टिकुलर मशीनरी को सप्लाई करने के बाद 6 महीने तक का आपका यहाँ पर ऑपरेटर लगाना चाहिए। दीज आर ऑल कॉल्ड लोडिंग ऑन द लोडिंग फैक्टर्स। सो ये लोडिंग फैक्टर का आप बाद में उसको ओरिजिनल प्राइस से आफ्टर दिस नेगोशिएशंस एंड ऑल आप उसको चेंज भी करेंगे। इट विल बी ओपन टू ऑल। द बायर्स मस्ट पब्लिश फाइनल इवैल्यूएटेड प्राइसेस प्रायर टू क्रिएशन ऑफ डिमांड। आपका प्राइस फाइनलाइज हो गया, देन ओनली डिमांड क्रिएट होगा और ऑर्डर प्रोसेस होगा। लेकिन ये कुछ लिमिटेड कैटेगरीज के लिए फिलहाल जब में अवेलेबल है, धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है। बट दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द type of bidding. The categories mostly किसके लिए अभी अवेलेबल है, बायोमास एंड टाइप्स ऑफ पंप्स लाइक हाई स्पीड डीजल, स्क्रू, फ्यूल, पेट्रोल पंप। क्योंकि वहां पर आप एक प्लांट एस्टेब्लिश कर देंगे, एक आइटम, एक इक्विपमेंट, एक मशीनरी ले आएंगे, वहां पर उसको ऑपरेटर सर्विस भी लेना चाहेंगे। सो ऑपरेटर सर्विसेज के लिए वो कॉस्ट लोडिंग करना है, तो इसलिए कैटेगरीज वो लोग धीरे धीरे ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड लोड बेस्ड बिडिंग। और एक हमको बहुत इजी लगता है ऑफिस में, स्टोर को, एक है पुश बटन प्रोक्योरमेंट। ये पुश बटन प्रोक्योरमेंट सिंपली फॉर दिस स्टेशनरी हो या बहुत कॉमन यूज गुड्स हो, कुछ चीजों के लिए पुश बटन प्रोक्योरमेंट यूज कर सकते हैं। उसमें आपको रेट रीजनेबिलिटी का कोई जरूरत नहीं है।
आप फॉर अदर प्रोक्योरमेंट्स को आपको इवन डीपी हो, इवन L1 डीपी हो, इवन बिडिंग कोई भी हो, आप रेट रीजनेबिलिटी फिर भी लेते हैं। बट पुश बटन प्रोक्योरमेंट में आपको रेट रीजनेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सो पुश बटन का प्रोक्योरमेंट का क्या है, नया गाइडलाइंस है, द टोटल प्रोक्योरमेंट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक केस मे बी अप टू 5 lakhs इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एक ही प्रोक्योरमेंट है, उसका 5 lakhs तक है, आप पीबीपी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन नो स्प्लिटिंग ऑफ रिकॉर्ड, पीबीपी की यूज करने के लिए हम स्प्लिटिंग कर नहीं सकते, वो भी है। दिस मेथड विल बी enabled by JEM only for select categories where the at least 10 sources are listed and marketplace is Sandesh. That means कोई भी प्रोडक्ट में पुश बटन करना है, कुछ ही कैटेगरी में है, वो जम ने बोला है जहां पर कम से कम 10 सेलर उस कैटेगरी को बेच रहा हो, उन कैटेगरीज के आइटम्स को आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट बेसिस पे खरीद सकते हैं। Once the PBP bid is invited on GEM, contract will be placed directly by GEM system without any human intervention. That means आपने अपना रिक्वायरमेंट डिमांड क्रिएट करके डाल दिया, मेरे को ये सामान चाहिए, तो सिस्टम वो विद इन पर्टिकुलर विंडो ऑफ टाइम में ऑटोमेटिकली सिस्टम सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली सेलर के ऊपर जो सेलेक्टेड आएगा उस पैरामीटर में ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो वहां पर नो इवैल्यूएशन, रिजेक्शन ऑफ बिड विद बायर विदाउट एनी नीड फॉर बायर टू सर्टिफाई रीजनेबलनेस, ये सारे मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको सामान मान लीजिए आपको ब्लू बॉल पेन्स 1000 चाहिए, सिंपली आप सेलेक्ट करके ब्लू बॉल पेन 1000 आप पीबीपी में डिमांड डाल देंगे, अब टाइम लिमिट दे देंगे, इतने दिन में मेरे को चाहिए, सिंपली वो ऑर्डर प्लेस होकर आपको ऑर्डर का कॉपी आ जाएगा। दिस इज द, ये खूबी है सिस्टम का, दिस इज द लाइक ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। सो हमारा जितना मैन पावर, जितना मतलब एफर्ट है ना, फिजिकल एफर्ट, तो ये सारा चीज चला जाएगा और एक ट्रांसपेरेंसी आएगा, एक हेडेक नहीं रहेगा कि कोई मैंने प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं कर दिया, कहीं कोई सिग्नेचर तो नहीं छूट गया, कोई कंपनी मेंबर का साइन तो नहीं रह गया, कोई गलत एजेंसी को तो नहीं, ये एवरीथिंग इज लाइक गॉन। आपको सिंपली आराम से मतलब फ्री होकर काम कर सकते हैं। देन वही है, जम सिस्टम वुड इटसेल्फ चेक दैट एटलीस्ट 5 बिट्स आर रिसीव्ड विद मिनिमम 2 डिफरेंट ब्रांड्स। वो अपने आप सिस्टम देखेगा, वो पूरा बढ़िया सा अपना सेलेक्ट करके आपको एक सेलर में ऑर्डर प्लेस करके दे देगा। इंडिविजुअल बायर्स में कोट मोर देन रेफरेंस प्राइस ऑफ बीपीबी। GEM system would ensure that order is placed only if the lowest price is received after BPB is below the market price identical offer identical requirement। मतलब पूरा मार्केट को सर्च करके GEM का जितना आइटम्स है उसका L1 के हिसाब से ही देगा। तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि GEM में कोई हायर प्राइस में कोई ऑर्डर तो नहीं प्लेस हो जाएगा, ये नहीं होगा। सो पुश बटन प्रोक्योरमेंट धीरे धीरे वो लोग और ऐड करेंगे तो हमारे लिए और इजी होगा फॉर कॉमन यूज गुड्स। अब जम में न्यू इनिशिएटिव व्हाट दे हैव टेकन इज, एक दिया है विवाद से विश्वास। विवाद मींस यू ऑल नो कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट से हम भरोसे तक कैसे कन्वर्ट हो, तो वो एक वॉक थ्रू के लिए ये सिस्टम में प्रोविजन रखा गया। An online portal for MSME sellers who are eligible as per the Vivad Se Vishwas 1 scheme notified by Minister of Finance to claim benefits by raising their applicable claims against the respective procuring authority। अगर मान लीजिए कोई भी MSME को कोई भी रीजन से कोई परेशानी हो रहा है, वो जेन्यून है, तो इस पोर्टल में वो डालेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम अपना टेकन केयर करके बायर ऑर्गेनाइजेशन से क्लेम्स करवा के उसको दिला देगा। तो ये एक VSV 1 इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें क्या होता है कि सेलर को एक देखिए गवर्नमेंट बायर्स के ऊपर ऑलवेज देयर वाज सम एक डाउटफुल नेचर में ही सेलर्स रहते हैं। सो वो हटा के एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गवर्नमेंट बायर्स आल्सो नॉट लाइक एनीबॉडी, दे आर आल्सो सीरियस, दे आर आल्सो प्रोफेशनल, वो वाला एक विश्वास लाने के लिए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। देन स्पेशल एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्पेशल इनिशिएटिव्स ऑन जेम। तो स्पेशल इनिशिएटिव्स जेम में क्या है, ऑटोमेटेड रूल बेस्ड सिस्टम ड्रिवन एनफोर्समेंट फॉर MSC एंड MIA प्रोविजन। देखिए MSC एंड MIA, मेक इन इंडिया
का प्रोविजंस है, डीपीआईआईटी का और एमएससी का, इसका कुछ प्रोविजंस हर टेंडर डॉक्यूमेंट में, आप ऑफलाइन टेंडर करिए, सीपीपी में करिए कि किसी में भी करिए, ये कुछ क्लॉजेस आर मैंडेटरीली यू हैव टू इंक्लूड. सो अब क्या है, आप भूल जाएंगे, आप मेक इन इंडिया किसी में डालेंगे, किसी में नहीं डालेंगे. लेकिन दिस जम ये सारा चीज को अपने ऊपर ले लिया. Now, JEM itself, while creating the bids, while placing the orders, itself takes care of all these enforcement systems. अपने आप ही वो include कर देगा. Then JEM provides an opportunity to MSC, startup, and women entrepreneurs to get registered on JEM and participate in bids and get preference as per the procurement policies as applicable and enforceable. देखिए, पहले हम क्या करते थे? What we were doing earlier. जैसे मेक इन इंडिया का परचेज प्रेफरेंस देना है, देयर इज अ सर्टेन कैलकुलेशन, वो सभी लोग नहीं कर पाते हैं. L1 प्लस 15%, L1 प्लस सम परसेंट, मतलब ये सारा कंफ्यूजिंग रहता है. तो दिस सिस्टम ऐसे बन गया है, you have to simply select the like type of evaluation this thing. तो सिस्टम ही जब इवेल्युएट करेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, आपको कुछ इसमें आपका रोल नहीं रहेगा, आप बिंदास होकर अपना ऑर्डर्स दे सकते हैं. सो ये एक फीचर, अच्छा इनिशिएटिव, स्पेशल इनिशिएटिव ऑन द जेम है. देन द जेम ई मार्केट प्लेस हैज साइंड एन एमओयू विद सिडबी to benefit MSMEs, women entrepreneurs, self-help groups, and for loan under Mudra. Hello. I think I'm one way. People are following? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Because I'm only speaking, no sounds are coming. I'm not able to see also because of the presentation mode. No, that is okay. Thank you. So for small sellers, government has made this initiative that even they get loans for this government procurement orders creation. मतलब ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उनको लोन देने का, मतलब उनको हैंड होल्डिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने जेएम को यूज करके एक एमओयू करवाया कुछ बैंकों से. ये हुआ. So this will enable the promotion of special initiative like ये. इसके वजह से क्या होता है, क्या क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स जेम को लेके किया है, बिकॉज जेम इज अ प्लेटफॉर्म वेयर मेनी सेलर्स, छोटे बड़े सबको लाया गया है और गवर्नमेंट को बेच रहे हैं. सो सबको लाना है, तो विमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुछ आर्टिफैक्ट्स है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स है, कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, तो इन सबको लाना है. दे आर नॉट टेक्निकल savvy, दे आर लिटिल इनहिबिटेंट उनका. सो इन सब के लिए एक एक अलग अलग स्पेशल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लाए हैं जेम के साथ टाइप करके. तो ये क्या है, एक है स्टार्टअप रनवे 2.0, एक है इनिशिएटिव. देन एमएसएमई SC/ST एंटरप्रेन्योर्स ऑन जेम, मतलब एमएसएमई है, फिर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स दिए गए हैं. Then the Saras collection means आप कभी देखे भी होंगे, आप तो बहुत हमारा मेन उसी में आता है, लॉगिन करते ही आपका हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स हो गया, सारे चीज आपको वहां पर खरीद सकते हैं. कभी कोई सोवेनियर खरीदना है उसमें खरीद लिया, कभी कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस आपका हो रहा है, बैग्स खरीदना, समथिंग खरीदना, खरीद लिया. तो सारस कलेक्शन एक रखा है एंड वुमेनिया रखा है. तो दिस आर द इनिशिएटिव्स, मतलब जेम को यूज करके बाकी सेक्टर्स के लोगों को कैसे बेनिफिट कराया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये है. सो देखते हैं इसमें क्या होता है. देखिए, स्टार्टअप रनवे 2.0 ये 2019 फरवरी में शुरू किया है. दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2019. सो इट वाज इनिशिएटेड बाय जेम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इनोवेशन. दैट मींस कोई भी स्टार्टअप, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, बिडिंग में हम डाल देते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस होने से वो सप्लाई करेगा. तो ऐसे करने से स्टार्टअप वाला कैसे सर्वाइव करेगा. सो आप स्टार्टअप के लिए रखे हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसका आप आपने देखा 143 रूल 143 जेफआर में, इसमें 173(1) में उसमें एग्जम्पशन दिया गया है. सो इफ यू वांट यू कैन एग्जेम्प्ट द एक्सपीरियंस एज वेल एज द टर्नओवर. सो वो है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजाइल एंड लीन स्टार्टअप. छोटे छोटे स्टार्टअप को
अपने गवर्नमेंट बायर तक रीच करने के लिए अपने प्रोडक्ट के साथ एक यूनिक कंसेप्ट है. This scheme will help startups to introduce unique innovations to government and PSU buyers. क्या है? देखिए इसका एक एग्जांपल है. जब कोविड आया था, कई छोटे छोटे स्टार्टअप बने हैं. हैंड सैनिटाइजर अपने अपने आप ही बना लिए, कुछ कुछ मतलब क्या सेंसर बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना दिए हैं. कुछ ऐसे इनोवेटिव करके स्टार्टअप किए. तो ये तो कोविड तो पहले हमने कभी देखा नहीं. ये सैनिटाइजर तो हम छोटे छोटे बोतल में यूज करते थे. इस टाइप का सेंसर बेस्ड सैनिटाइजर तो बड़े बड़े लैब्स में होते थे, जनरल यूज के लिए नहीं होता था. तो वो एक इनोवेशन है. अगर आप वहां पर एक्सपीरियंस के लिए बैठ के आप खरीदना चाहेंगे तो वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे हम. तो वैसे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए वो स्कीम बना हुआ है. Assess utility and market accessibility to of the startup products. कैसे? देखिए एक स्टार्टअप है, कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, उसको जनरल पब्लिक में कमर्शियल मार्केट में बेचने से पहले वो कुछ टेस्ट मार्केट में डालना चाहेगा. तो उसको एक एवेन्यू दिया गया. आप गवर्नमेंट में डालिए, पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दीजिए, आप अपना उसको इवेल्युएट करिए, उसका यूटिलिटी मार्केट एक्सेसिबिलिटी इवेल्युएट करिए, करके आप उसको अगर कमर्शियल वैल्यू उसका है, कमर्शियलिटी है, तो उसको लार्ज स्केल में जा सकते हैं. सो इसके लिए ये स्टार्टअप रनवे एक अच्छा माध्यम बनाया गवर्नमेंट ने. देन स्पर हाइपर लोकल जॉब क्रिएशन एंड वेल्थ जनरेशन टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ बाय वे ऑफ हेल्पिंग स्टार्टअप्स. तो आपका इसके वजह से स्टार्टअप को आप प्रमोट करने के कारण आपके लोकल जॉब क्रिएशन में बहुत अच्छे से उछाल आया है और आपका पूरा आमदनी बढ़ा है लोगों का. सो धीरे धीरे इंक्लूसिव ग्रोथ, पूरा सोसाइटी के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक मेथड बन रहा है ये. देन द प्लेटफॉर्म ऑफर्स स्टार्टअप्स ऑल द मार्केटप्लेस फंक्शनैलिटीज दैट आर अवेलेबल टू रेगुलर सेलर्स एंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्पर द मेक इन इंडिया प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द इंडियन स्टार्टअप. तो हमारे जो मेक इन इंडिया, मोदी सर का, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कंसेप्ट था मेक इन इंडिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये भी एक माध्यम की तरह यूज करें. अभी तक जब ये एक मैंने पहले का ये डेटा मेरे पास है, टिल डेट 15665 startups have been registered on GEM and have processed orders worth 9,512 crores in gross merchandise value. देखिए इतने स्टार्टअप्स इतने crores of merchandise value का ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं. So this is a big initiative of the government to promote the small startups, make in India को कारगर करने के लिए. Then MSME SC/ST entrepreneurs on GEM. ये क्या है initiative? GEM is collaborating with various stakeholders from the micro, small and medium enterprises MSME ecosystem with special focus on specially SC/ST का entrepreneurship. MSME में भी SC/ST को मतलब आपको प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम है. ये है, इट इज ए पार्टनरशिप बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट गोल ऑफ 20. देखिए हम एमएसएमई मेक इन इंडिया का आपको पास है 25% आपको मिनिमम एमएसएमई से खरीदना है. ये सारे रूल्स हमारे जीएफआर में टाइम फ्रेम आता है. तो जेम में आप जाएंगे, जेम सिस्टम अपने आप ये सारे इनबिल्ट कर लिया है. तो आपको ज्यादा इसके अंदर फंसी होने की जरूरत नहीं है. वो सिस्टम जैसे ड्राइव करता है, जेन्युइनली सबको आप सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए. आपको कभी भी कोई भी स्टैट्यूटरी मामलों में कभी भी कोई नोटिस नहीं आएगा. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. एक टेंडर में हमने सीपीपी में डाला था, उस टेंडर में ये एमएसएमई का क्लॉज और ये जो नियर बाई कंट्रीज का एक क्लॉज आया, वो ये क्लॉज नहीं डाला गया था. ये दोनों के कारण हमारे टेंडर नोटिस को एग्जामिन करके हमको डीपीआईआईटी से आईसीआर हेडक्वार्टर्स के विजिलेंस के थ्रू हमको एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया. देन वी हैव गिवन आवर एक्सप्लेनेशन, आवर वॉट एवर इट इज एश्योरेंसेस. आफ्टर दैट 2-3 हियरिंग के बाद ये ड्रॉप हुआ है. सो अब जब में जाएंगे तो जब में आपको ये सारे चीज कुछ देखने की जरूरत नहीं. सिस्टम इटसेल्फ takes care of all these things. तो ये एक इनिशिएटिव है. Then this initiative seeks to encourage active participation of MSA sector in public procurement. Till date, nearly 8.16 lakh sellers have registered on GEM and have processed orders for
152,888 crores in gross merchant value. इसमें से 68,286 है MSME sellers who have facilitated orders for 20,263 crores in gross merchandise value. देखिएगा MSME का ही 20,000 crores का मार्केट हमने क्रिएट किया है. गवर्नमेंट दिस मार्केट इज क्रिएटेड ओनली बाय द बायर्स लाइक अस, गवर्नमेंट बायर्स. देखिए कितना बड़ा मार्केट वी आर क्रिएटिंग. Then one more initiative is Saras collection. Social inclusion, ये one of the core values है जम का. So उसमें छोटे छोटे जो मतलब आर्टिजन्स है गांव में, कहीं पर कोई कोने कोने में वो लोग बनाते हैं, कोई मेला में, कोई एग्जीबिशन में उसको बेचते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, हैंडलूम टेक्सटाइल्स हो गया, आपको कुछ ऑफिस में रखने के लिए कुछ डेकोर्स हो गया, फर्निशिंग हो गया, कुछ इवेंट का सोवेनियर हो गया, आपका हैंड सैनिटाइजर हो गया, कुछ इस टाइप का चीज. ये सारा चीज को एसएचजी ग्रुप के थ्रू सारस कलेक्शन करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. उसके थ्रू ये जेम में बेचने का स्कोप दिया गया है. देन एक और है, नया है वुमेनिया. वुमेनिया एक ऐसा इनिशिएटिव है, उसमें सेल्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अलग, जैसे एमएसएमई में SC/ST एमएसएमई मेंबर्स को जैसे प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारा माइंड में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ही हमेशा आता है. अदरवाइज ऑल्सो सेल्फ हेल्प ग्रुप में विमेन मैन सभी लोग आते हैं. इवन नाउअडेज FPOs ICR एंड एग्रीकल्चर में आ रहे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी दूसरे कैटेगरी में आएंगे. इसमें से जो विमेन है उन टाइप के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशली इस वुमेनिया का इनिशिएटिव शुरू किया गया है. व्हाट इट सीक्स टू डेवलप विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी टू अचीव जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे विमेन है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में जेंडर इंक्लूसिव होके अचीवमेंट में भागीदारी होइए. This initiative would enable women entrepreneurs and women self-help groups to sell handicrafts and handloom, jute, coir products, home decor. ये सारे चीज वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को बेचने के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है. और इसके लिए हमको प्रोक्योरमेंट एंटिटी को अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हम नॉर्मल L1 बिडिंग, DP, कस्टम बिडिंग उसी में हम करेंगे. लेकिन उन लोग सेलर्स के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इसके द्वारा कितने लोग कैसे, मतलब दे आर गेटिंग एडवांटेज. एज अ बायर वी नीड ओनली 4-5 चैनल्स. हम अपना प्रोक्योरमेंट नॉर्मल करेंगे, लेकिन हमारा प्रोक्योरमेंट से इनको इन वो प्रोक्योरमेंट के नेचर के हिसाब से किस किस को एडवांटेज होता है. ये है इनिशिएटिव्स. देन सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ सच इनिशिएटिव क्यों है? नियरली 80% वुमेन ओन्ड एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया आर सेल्फ फाइनेंस्ड and more than 60% of the 8 million units are owned and it is led by the women. So who are socially challenged section. So उन लोगों के लिए आगे मतलब छोटे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है गांव में, नहीं तो कहीं कोई रूरल एरिया का, कोई मतलब अर्बन का आउटस्कर्ट्स में छोटे विमेन ग्रुप्स होते हैं. उनका प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन उनके लिए मार्केट नहीं रहता है. अभी हमारे KVKs, हमारा ICR कितना टेक्नोलॉजीज निकालते हैं, हम लोग देते हैं. हम लोगों को फीडबैक आता है, हम प्रोडक्ट तो बना देते हैं सर, हमारा मार्केटेबिलिटी नहीं होता. हम मार्केट कैसे करें हमको पता नहीं है, तो मार्केट हैंड होल्डिंग कैसे हो. तो ये एक माध्यम है. हम उनको ये बोल सकते हैं, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ ऑन जेम. आप जेम में रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को. सो ऑटोमेटिकली आपका इतना बड़ा मार्केट गवर्नमेंट बिजनेस आपको मिलेगा. वंस दे आर कॉन्फिडेंट, once they are creating the products to a large volume, so automatically they will be blooming like an entrepreneur, good big entrepreneur. So automatically unka economic upliftment hoga. So this is one of the initiatives taken by our government through GEM. So these are the major things we can say. अब मैं यहाँ पर थोड़ा विराम देता हूँ. अभी कोई queries है, let us discuss. Yes, sir. One query from my side. कौन बोल रहे हैं? Myself, Mohanish Pacharia from NRC on Camel. NRC Camel. Okay, बोलिए. Yes, sir. Actually in GFR and after amendment, the limits has been changed for procurement in direct purchase for research institutes, but it was not
ना ना मैं बताता हूँ क्लियरली। ये क्वेश्चन आपके डाउट जेन्यून है। देखिए, जीएफआर में जो अमेंडमेंट आया है फॉर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसीआर सीएसएआर, दैट इज नॉट फॉर जेम। आप ये सभी लोग लिख के रख लीजिएगा। दिस लिमिटेशन, द एनहांसमेंट इज ओनली अदर देन जेम प्रोक्यूरमेंट। आपको जेम एलो ही नहीं करेगा, आप प्रोक्यूर कैसे करेंगे? 25 के ऊपर एलपी एलो नहीं करेगा डीपी। आपको 154, 155 ये दोनों में करेंगे तब जाके वो एग्जम्पशंस लागू होगा। ये आपने क्वेश्चन अच्छा रेज किया है। तो ये आप जीएफआर का लेटेस्ट जो वर्जन है अभी जुलाई तक का अपडेटेड वाला आईसीआर ने भी लिंक्स सपोर्ट मतलब भेजा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाले साइट से। उसमें भी क्लियरली लिखा है जेम में ये लिमिट साइंटिफिक डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, इट इज अदर देन जेम प्रोक्यूरमेंट के लिए है ये। क्लियर? क्लियर सर। ओके, थैंक यू। Hello. हाँ बोलिए। Hello, sir. Is there any purchase value ceiling for purchase from startups, MSME, Vimania, like that? No, that's what I'm telling. These MSMEs, startup, women, all these things are for sellers. This is the government's initiative. But for us, our method of procurement is same. Up to 25,000, you can go for DP. Up to 5 lakhs and above 25,000, you can go comparing and go. So while selecting the products and all, automatically those women group, MSMEs, these small vendors, automatically they come. We need not do anything else for that. It is system inbuilt. Sir, there is one question more. Yeah, please. Yes. Suppose, sir, value of any good is above 1 lakh, and that is available on the jam, and we go for bidding. Yeah. Then there is any necessity to actually form a committee for that? I'm interrupting. You cannot go for bidding for a value less than 5 lakhs as per present guidelines. You can do the bidding only if it is more than 5 lakhs. If it is less than 5 lakhs, you can't do the bidding. So if it is 1 lakh, you can't bid. So if your question is about bidding, then you take the example of more than 5 lakhs. Okay, sir. Suppose the value is more than 5 lakh. Then there is a necessity to form a committee for that, because indenter is give the all specification, and the PSC, that is Purchase Advisory Committee, also recommended the product. And after that, the indenter is intended to bid, and then the technical evaluation part. Should we have to form a committee for its evaluation? See, as per general practice, as per procurement manual and all, what we usually follow, once an indent is received, that indent, keeping upon the nature of the procurement, what we do, that indent is first, initially, in principle, approval we take whether it is available under EFC or any project, it is provisions are there. First, we see that. Once it is available, then we send it to the technical evaluation committee for the like sophisticated items only. If it is a sophisticated item, then only we'll send to the technical evaluation committee for vetting of the technical specifications. This is the first TEC. So once it is done, then it goes to the PSC, Purchase Advisory Committee. The Purchase Advisory Committee takes a call. Again, it says, yes, the Technical Evaluation Committee, the product, the specifications they have cleared. We can go ahead with the provisions, and method of the procurement also they can decide. If it is a small thing, 25,000 and up to 1 lakh to 5 lakh, then if you can, it is an off-the-shelf readily available product, then you need not go to this thing. If it is sophisticated equipment or item where specifications are very much like mandatory, then technical evaluation and PSA recommendations required before pre-order stage. Once the PSA recommends the procurement through a bidding, even it is a
5 lakhs, estimated cost is 5,50,000. Then PAC says, okay, go for bidding on the gem. So bidding on the gem, even if the category is available or category is not available, those things also PSC, if they want, they can see and suggest go for the like custom bidding or normal bidding. Where the PSC role is specifically comes is when you are selecting a proprietary articles. At PSC, there are two definitions for like acronyms. One is PSC means Purchase Advisory Committee, what we use for the committee. This PSC bidding is proprietary article certificate based bidding. That means you are selecting a specific brand or specific model and giving. So for that, you need to take the recommendation of the PSC, your committee. Then you have to do the bidding. There it is mandatory. For normal things, for normal computers, general things, simply you take the comments of the intending officer, suitability of the product. He says, he gives two certificates. One is the product selected in the gem is suitable to me or not suitable to me. The selected product, the price is reasonable or not reasonable. These two certificates we take from the inventor, and we take the approval of the competent authority and simply place the order. हेलो Yeah, tell me. सर, आइटम बेस्ड बिडिंग 5 लाख से नीचे कर सकते हैं जैम पे? 5 लाख से नीचे कोई भी बिडिंग नहीं आज के डेट में पॉसिबल है। नहीं सर, अगर कोई आइटम ऐसा है जो कि 1 या 2 लाख रुपए का है और उसका कंपेयर है नहीं, अकेला ही प्रोडक्ट है, उस केस पे कैसे करें? सपोज कोई आइटम है या कोई चेयर या कोई कंप्यूटर एक ही कंपनी का बस लिस्टेड है जैम पे और आइटम की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख के बीच में है और हमको उसे खरीदना है, तो उस बेस पे हम सर बिडिंग करेंगे? नहीं अवेलेबल है कैटेगरी, जहां अवेलेबल नहीं पा रहे हैं 5 लाख के नीचे ना, अगर वो कैटेगरी अवेलेबल है तो आप कंपेयर करके आप कर पा रहे हैं। सर कंपेयर करने के लिए 3 आइटम है ही नहीं, सिंगल आइटम है, बस कैटेगरी अवेलेबल है, सिंगल आइटम है और जैम बीट करने के लिए अलाउ भी कर रहा है। Am I audible? Hello? Hello? यस सर, यस सर। या सॉरी। सो जहां पर कैटेगरी अवेलेबल है आप डीपी में कंपेयर करके कर लीजिएगा। जहां पर कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, आपको 5 लाख के नीचे बिडिंग पॉसिबल नहीं है। उस केस में आपको पुराना मेथड में ही जाना पड़ेगा, या तो सीपीपी में डालिए या आपका 154 में, 155 में या 166 जैसे सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट, उसमें आप जा सकते हैं। अभी सर जैम पे कैटेगरी अवेलेबल है, बट डायरेक्ट परचेज करने के लिए 25,000 से 5 लाख के लिए में आपको 3 अलग अलग ओईएम के प्रोडक्ट चाहिए L1 बनाने चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हो जो प्रोडक्ट कैटेगरी भी अवेलेबल हो, प्रोडक्ट अवेलेबल हो, लेकिन बस एक या दो ही ओईएम है, उस केस में हम उस आइटम की बिड कर सकते हैं? नहीं, वो बिड क्रिएट ही नहीं होगा। आपका 5 लाख से नीचे एस्टिमेटेड वैल्यू में बिड क्रिएट ही नहीं होगा। सर करने देता है सर, हाँ करने देता है सर, जैम करने देता है सर। आइटम की वैल्यू अगर आप मतलब 50,000 भी डालेंगे तब भी करने देता है जैम का। जैम का नहीं रोकता सर, ओनली बीओक्यू और कस्टम बिड में 5 लाख के ऊपर रोकता है, 5 लाख के नीचे आइटम बेस में करने देता है सर जैम। Yes sir, I agree with PS based. ओके, लेट अस। हाँ, बिड तो कर सकते हैं, अलाउ करता है, मतलब लेस देन 5 लाख होने से भी अलाउ तो कर देता है बिड करने के। लेट अस चेक इट। ओके सर, और जैम पे न्यू वर्क्स के लिए तो बिड नहीं डाल सकते ना सर कोई? वर्क्स का तो हो ही नहीं सकता। आप सर्विस कैटेगरी में करके कर सकते हैं, बट वर्क्स के नाम से तो जब में बिड नहीं कर सकते, मतलब प्रोक्योर नहीं कर सकते। रिपेयर के लिए सर अभी सर्विसेज में दिया है, देखिए सर्विसेज का डेफिनेशन दिया है, उसमें कुछ रिपेयर्स है, वो जो रिपेयर्स को आप सर्विसेज में ले सकते हैं। कुछ रिपेयर्स आपका जम का अभी मैंने शेयर किया था, जो अभी फिर से देगा, उसमें सर्विसेज का क्लियरली डेफिनेशन दिया हुआ है, जब में किसको सर्विस मानते हैं, किसको आप गुड्स ये वर्क्स मानते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन और है सर, पीएसी परचेज में अगर आइटम की कॉस्ट 5 लाख के ऊपर है और आइटम की कैटेगरी भी जैम पे लिस्टेड नहीं है, तो उस केस में हम पीएसी परचेज को कस्टम बिड के थ्रू कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो ये है, मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए काफी तैयारी सभी लोग किए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दिस।
देखिए जेम तो एक चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं बिकॉज जेम से न्यू थिंग प्रोक्योरमेंट में न्यू थिंग है सो थोड़ा सा आप इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा कोई डाउट हो तो मेरा ईमेल आईडी है आप डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी अपडेट मेरे को मिलेगा मैं दास सर को शेयर कर दूंगा वो आपको कुछ भी अपडेट मिलेगा जेम के रिलेटेड मैं दास सर को दे दूंगा दास सर आपको शेयर कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस है No, sir. Presentation was very nice, sir. अरे ये तो थैंक Okay, okay, sir. यू सर Thank you for Thank you. sparing your valuable time with us. And thank you, a very brilliant presentation, Anjan. Throughout the presentation, I am here. So it's a very useful, very informative, very brilliant presentation. Okay, for Actually, examination point of view, it is more than enough. Okay, yes, yes. people may be asking for their day-to-day official purposes. That's a different. But for examination point of view, it's more than enough. Thank you very Yes. much for sparing your valuable time with us. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. And I my best wishes to all the candidates for the exam. All the best. Thank you, sir. Thank Okay, you, sir. okay, okay, Namaskar, namaskar, sir. Thank you, sir. That's sir. okay.